Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today this is the last topic of macroeconomics, and after this we will focus only on statistics, numericals. Okay, so all the theory of micro and macroeconomics with detailed explanation is already available in the playlist. You can watch them anytime. Okay, so for that you have to follow Economics at Ease, right? And a quick update, very soon I will be starting accounts for classes 9th and 10th ICSC on this channel. Okay, so stay tuned and follow Economics at Ease. Okay, now let's start the last topic of macroeconomics, microeconomics, right? This is microeconomics last topic. Okay, we have already completed macro also, so you can just go through the playlist. It's already uploaded, okay, and updated also. So let's have a quick recap of what we have learned about the shifts that can be you can see in the demand curve and supply curve. Okay, so very quickly we are going to just know the basics. Okay, so recap is here. Demand curve shifts due to why? Due to various factors. First of all, change in price of complementary goods, change in price of substitute goods, change in income, normal or inferior goods, change in taste and preferences due to change in population and due to expectation of change in price in the future, right? So these are the reasons why the demand curve shifts. Okay. Now these are the reasons why supply curve shifts due to change in price of factors of production, price of other goods, state of technology, taxation policy, goals of the firm, number of firms, and expectations of change in the price in future. We have already discussed in detail these two chapters, that is demand and supply curve, their curves, their changes, okay, and the reasons, the factors, okay, along with the diagram. So we have already discussed. So that's why I've written here the recap. Okay. Now the various cases of change, that is shift in demand and supply on equilibrium price. Now we are considering about what? That is equilibrium, right? अभी तक हमने कितना पढ़ा है? सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में ही हमें पता करना है, राइट? सो इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड, okay, then what happens, how we can show, and there is equilibrium also, okay, how it affects, कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे, बेसिक हमें ये चीज देखनी है, okay, and whatever the slides I have made, अगर आप उतना कर ले जाएंगे, आप एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे, आप डायग्राम को भी बना लेंगे, और कुछ भी नहीं होगा, बस बट यू नीड प्रैक्टिस, ओके, दैट्स आई वांट फ्रॉम यू ऑल लर्नर्स, दैट इज यू नीड प्रैक्टिस, उसको समझेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे, राइट? सो चेंज इन डिमांड, अगर सिर्फ डिमांड में चेंज हो रहा है तो चेंज कैसा होगा? इधर द डिमांड इंक्रीजेस, इंक्रीज का मतलब हमेशा होता है राइटवर्ड शिफ्ट, आपको डिमांड कर्व पता है, ठीक है, उसको राइट में जब भी हम शिफ्ट करेंगे दैट मीन्स इट इज अ इंक्रीज इन डिमांड, एंड वेन एवर द डिमांड कर्व, उसमें बोला गया है अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली आपका सप्लाई में भी यही होता है कि इंक्रीज का मतलब होता है शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, ओके। सप्लाई में भी सेम चीज है, इंक्रीज का मतलब है राइट ही तरफ बढ़ेगा, कहीं ये नहीं होगा लेफ्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज जब भी आए, वेदर इट इज डिमांड और सप्लाई, यू हैव टू मेक द यू कैन से कर्व ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। Then second point is this, whenever there is a decrease in demand or decrease in supply, हमेशा जो उसकी कर्व होगी, डिमांड की जैसे कर्व बनती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो वैसे ही रहेगी, सप्लाई की जैसे कर्व बनती है हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग, वो हमेशा अपवर्ड होगी। बट when there is decrease in demand and supply, then the curve will shift always to the right. Got it here? ये जब अभी डायग्राम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ चेंज इन बोथ इन डिमांड, नाउ वी आर डिफरेंट केसेस जो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोथ डिमांड एंड सप्लाई दोनों अगर चेंज करेंगे क्या होगा? अगर बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम? ओके, डायग्राम कैसे बनेगा? या क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा? वी हैव टू स्टडी दिस, ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन डिमांड, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें राइट में बढ़ेंगी, तो उसका प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा? डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस, दिस कैन बी ऑल्सो अ केस, डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस, ओके। देन स्पेशल केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो आपने परफेक्टली इलास्टिक का भी डायग्राम पढ़ा है,
तो उसको हम कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, और उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. ओके, देन चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. अब यहाँ पे सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी, यहाँ पे डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो गया. Change in demand when supply is perfectly inelastic, and change in supply when demand is perfectly inelastic. Okay, so this is the case. These are the cases which we are going to just learn about this. Okay, and let's see how we are going to do this. First of all, change in demand, right? So change in demand कैसे होगा? Just wait here. Just wait for a while. Okay. So in microeconomics, this is the last topic. I'm just letting you know again and again, okay? And then afterwards, you can just go through the playlist, okay? It's already uploaded, okay? For micro and macro both, all the topics I have already covered. Now, change in demand, increase in demand. So increase in demand का हमें पहले पता है what is equilibrium. First of all, we are going to draw a diagram on which on x-axis we are going to take the price, and on you can say on y-axis we are going to take the price, and on x-axis the quantity demanded and supplied. दोनों चीजें लेंगे बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम के साथ हम लेके चल रहे हैं, राइट? रिमेंबर दिस. तो हमने पहले इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम बनाया. सिंपल डिमांड कर्व क्या है आपकी? डाउनवर्ड स्लोपिंग. सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, एंड दिस इज द प्राइस एट विच द इक्विलिब्रियम इज हियर. इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये था. अब आपको फोकस क्या करना है? इंक्रीज इन डिमांड. वी नो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट, राइट? राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, ये राइट ऊपर चला जा रहा है. सो इंक्रीज इन डिमांड हमने खाली डॉटेड लाइन से करी. सप्लाई कांस्टेंट रहेगी. सप्लाई में हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? डायग्राम पे ये चीज आपको फोकस करनी है. अब इसकी वजह से देखिए जो आपका आ रहा है, जहां पे कट कर रहा है सप्लाई को, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका इक्विलिब्रियम 1 बन गया, राइट? तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आप देखेंगे अपने आप ही आपका डायग्राम जब बनेगा, इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, देन प्राइस अपने आप देखिए इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट पे, एंड क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है, यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी है. नाउ लेट्स सी हियर. और एक अलग से भी मैंने यहाँ पे देखिए आपको ये बताया हुआ है. न्यू इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इट इज डिटरमिनेंट E1. इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1. तो ये OP था, ये राइज करके OP1. आप सिंपल कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस और राइजेस, व्हाटएवर. ओके, नाउ लेट्स सी इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है. एंड इंक्रीज इन डिमांड अज्यूमिंग नो चेंज इन सप्लाई. कभी भी आपसे बोला जाए इंक्रीज इन डिमांड है और सप्लाई के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा, दैट मीन सप्लाई इज कांस्टेंट. ओके, leads to a rightward shift in the demand curve. It creates an excess demand at the old equilibrium price. This leads to a competition among buyers which raise the prices. जाहिर सी बात है, डिमांड ज्यादा होगी तो वो पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जो हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. An increase in price leads to a rise in supply and fall in demand. Equilibrium price and quantity rises. आपको बस ये पता होना चाहिए क्या चीज जो मेन ये है यहाँ पे, ठीक है ना? डायग्राम आपने बना लिया, और इसको एक्सप्लेनेशन भी आप इसी से कर सकते हैं. और खाली आपको बताना है अगर, तो आप बता दिए कि प्राइस आपने वाई एक्सेस पे लिए, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड टेकन ऑन द एक्स एक्सेस. बस यही एक्सप्लेनेशन ही होता है, ठीक है? इट्स सफिशिएंट. देन डिक्रीज इन डिमांड, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. लेकिन सप्लाई क्या है यहाँ पे अज्यूम की गई है? देयर इज नो चेंज इन सप्लाई और सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ. डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट की तरफ बढ़ गई डिमांड. डिमांड कर्व देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो हमको डिमांड का कर्व का डॉटेड लाइन जो है वो लेफ्ट की तरफ बनाया. अब इससे इफेक्ट क्या होगा? इट क्रिएट्स एन एक्सेस सप्लाई एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. दिस लीड्स टू अ कंपटीशन अमंग सेलर्स व्हिच रिड्यूस द प्राइस. अ डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू अ राइज इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई. इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉल्स. अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपकी एक्चुअल डिमांड थी और सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी था. अब जब डिमांड आपकी कम हुई तो क्या हुआ? उसका इफेक्ट पड़ा कि प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी भी आपकी कम हो गई. सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप इसको जो है कर लेंगे, ठीक है? because supply remains constant. Now if there is a change in supply, now change in supply हो रहा है, इसका मतलब है डिमांड क्या है? कांस्टेंट है, राइट? इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई मींस राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, राइट? रिमेंबर दिस. जब ये आपकी डायग्राम इसी को सोच के बस बनाएंगे ना, तो अपने आप प्राइस और क्वांटिटी अपने आप, वो आपके दूसरा इक्विलिब्रियम जब बनेगा पॉइंट, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है? और आप जो है उसकी वजह से क्या करेंगे? You can easily describe or explain the diagram also, right? बस यही points आपको याद रखने हैं. When there is an increase in supply, demand remaining unchanged, the supply curve will shift to the right. अब देखिए supply curve क्या होता है? Upward sloping curve होता है. Demand curve जो है हमारा downward sloping curve है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे because demand is constant, right? तो जैसे ही हमने कहा increase in supply, it means rightward shift बोल दिया.
ठीक है, राइट की तरफ राइट हैंड आपका जो होता है, आपके ये सब पुराना ही है, ठीक है, डायग्राम्स तो वही आपको समझ में आ जाएंगे। बस यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम ऐड कर दिया, राइट। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे ही आपको फोकस करना है, राइट। सो इफ देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई, व्हाट हैपेंस, द प्राइस विल रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस विल रिड्यूस। और नॉर्मली क्या होता था, सप्लाई तब होती तो प्राइस हमेशा बढ़ रहा होता था ना, लेकिन हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम रखना है, तो प्लीज आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। रिमेंबर दिस। सो प्राइस रिड्यूसेस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस। देखिए क्वांटिटी क्यू थी और Q1 हो गई, तो अगेन न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट E1, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। आप खाली इतना मेंशन कर देंगे, बहुत आराम से सफिशिएंट है, राइट। और जब भी न्यू इक्विलिब्रियम दिखाइए तो वो डॉटेड लाइन से दिखाइए, ओके। So the examiner should know that yes, you have done it perfectly. Then decrease in supply means leftward shift, right? ऊपर की तरफ चला जाता है। When the supply decreases, demand curve remains remaining unchanged. Supply curve shifts to the left. When supply decreases, it creates an excess demand at the old equilibrium. It leads to a competition among buyers, which raise the prices. And increase in price leads to a rise in supply and fall in demand. Equilibrium price and quantity क्या करेगा, दोनों चीजें फॉल कर जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला मेरा जो एक्चुअल हम बनाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा हो गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, तो प्राइस ही आ गया, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ अब हमें फोकस क्या करना है, डिमांड को छूना नहीं है, डिमांड ऐसी है एज इट इज कांस्टेंट रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, दैट इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जैसे ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो अपने आप जहां पे वो डिमांड को कर्व को कट करेगा वो आ जाएगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आप देख लेंगे प्राइस बढ़ रहा है एंड क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, ओके। सो दिस इज प्रूव्ड। जब डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप ये चीज प्रूफ हो जाएगी, आपको उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, राइट। ना चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि दोनों अगर डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, केस वन, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। अगर दोनों में चेंज क्या है, इक्वल है, तब क्या होगा, व्हेन डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सप्लाई का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो पहले तो हमने इक्विलिब्रियम बनाया, अब हम क्या करेंगे, यानी कि प्राइस आपका सेम है, राइट। अब इसी पे हमने क्या किया, प्राइस कांस्टेंट एज बोथ कर्व डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि एक ही सेम प्रोपोर्शन, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम बट क्वांटिटी फॉल्स, ठीक है। दोनों एक ही इक्वली दोनों जो है आपके डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्राइस रिमेन्स द सेम। एंड व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप इसको करेंगे, डायग्राम बनाएंगे डॉटेड लाइन से, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं क्वांटिटी आपकी फॉल्स करेगी। एंड इट इज रिटन आल्सो हियर, ओके। यू कैन गो थ्रू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड बहुत रिलैक्स होकर आराम से एक एक केस को आप खुद से डायग्राम ड्रॉ करके देखिएगा। नाउ केस टू, इफ द डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड अगेन लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड का हमने क्या किया, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस बनाया, अगेन सेम डायग्राम। देन डिक्रीज में थोड़ा सा हम ज्यादा उसको डॉटेड लाइन पे कर देंगे और सप्लाई में थोड़ा सा कम रखेंगे, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब इससे क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, इसका मतलब है सप्लाई में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए सप्लाई का चेंज आप देख सकते हैं, इसमें गैप कितना है, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस करा एंड देन वी आर गोइंग टू सी दैट इज डिक्रीज इन डिमांड क्या है, यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड देखिए बहुत कम है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एंड जो सप्लाई का है वो ज्यादा गैप है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्राइस आपका क्या करे, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, लेकिन आप स्लाइटली नहीं लिखेंगे, आप राइज ही लिखेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस से बढ़ गया है प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस, ओके, और फॉल्स, जो भी आपको सही लगे वो। ना बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, अब हमने यहाँ पे देखा था ना, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस था, इंक्रीज का मतलब है दोनों चीजें क्या करेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट होंगी। अगर इक्वल होगा तब कैसे होगा, इक्वल अगर प्रोपोर्शन में कर रही है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से इंक्रीज करने में, तब क्या केस होगा, कैसे बनेगा डायग्राम। एंड केस थ्री, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, ओके। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों में बराबरी से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट मींस राइट वर्ड शिफ्ट, तो हमने लिख दिया ना, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड इज इक्वल टू राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, ओके। देन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम, इक्विलिब्रियम देखिए जब डिक्रीज हो रहा था दोनों इक्वल तब भी सेम था, और जब इंक्रीज करेगा तब भी सेम रहेगा, ओके। बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, बढ़ रही है, पहले इक्विलिब्रियम बना देंगे हम, उसके बाद जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी हम उसको फॉलो करेंगे, ओके।
कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कि आप बहुत कंफ्यूज हो। जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है आप उसको खाली फॉलो करें एंड देन यू विल कम टू नो दैट इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उससे बढ़ रहा है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो रही है, वाइस वर्सा। ओके, द इंक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सो व्हाट हैपेंस, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड इज मोर। राइटवर्ड शिफ्ट क्या है, डिमांड आपकी देखिए ज्यादा कर दिया, गैप ज्यादा हमने बना दिया है एंड सप्लाई में कम कर दिया है, राइट। So what happens here? Now you can see that price rises and quantity with a dotted line. You can say quantity also increases. Okay, तो दोनों दोनों चीजें क्या करेंगे, राइज करेंगी। Now case 3, increase in demand is less than increase in supply. Increase का मतलब ये है कि वो rightward shift कर रहा है, right? So rightward shift है, लेकिन यहाँ पे क्या है, supply आपकी ज्यादा increase कर रही है और demand को हमने कम कर दिया, right? Then what happens? The main आपका निकलेगा क्या क्रक्स इसका, कि equilibrium price falls and equilibrium quantity rises. देन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक है कि इक्विलिब्रियम पे तो हम थे, उसके बाद हमें क्या शो करना है कर्व्स में, हमें जो चेंज करना है वो डिमांड डिक्रीज कर रहा है और सप्लाई आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। हाउ यू गोइंग टू शो डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, जितने से डिक्रीज कर रही है डिमांड उतने से ही इंक्रीज कर रही है सप्लाई। देन व्हाट हैपेंस, शिफ्ट इन डिमांड, देखिए अब इसमें डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का, और यहाँ पे इंक्रीज का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, लेकिन दोनों एक ही मतलब इक्वली कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस हियर, द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। तो अब आप ये देख सकते हैं कि फॉल्स हो गया और क्वांटिटी क्या करेगी आपकी, सेम रहेगी ना। डिक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, अब डिमांड जो है डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि लेफ्ट होगा कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज मोर देन द राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। व्हाट हैपेंस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एक्चुअल था डिमांड एंड सप्लाई एंड दिस इज योर एक्चुअल। ये शुरू में आप बनाएंगे इक्विलिब्रियम सिंपल सा। अब इसमें क्या करा है इन्होंने कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड इज मोर। डिक्रीज का मतलब होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो उसको ज्यादा गैप पे बना देंगे डॉटेड लाइंस, ठीक है। और सप्लाई का क्या है, हमने कम कर दिया है, ठीक है, इंक्रीज। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट। तो राइटवर्ड शिफ्ट, अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे दोनों डॉटेड लाइंस कट कर रही है, तो एक तो यहाँ पे कट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, देखिए ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये फॉल होके P1 पे आ गया और क्वांटिटी भी देखिए क्या हो गई, कम हो गई, राइट। इस तरह आपको इसको स्टडी करना है और डायग्राम्स आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है, राइट। सबका मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Decrease in demand is less than increase in supply, so we are going to follow the rules. That is, first we are going to make an equilibrium price and quantity, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और डॉटेड लाइन है यानी कि जो नेक्स्ट, अब जो हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिले, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है आपका आ जाएगा ये लेफ्टवर्ड साइड, ओके। तो डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। The next is demand increases and supply decreases, इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो उसमें क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज इक्वल टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। देन व्हाट हैपेंस हियर, क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, ओनली प्राइस विल यू कैन से increases, okay, ठीक है। Then increase in demand is more than decrease in supply. When there is in demand is more than decrease in supply, rightward shift in demand curve is more than the leftward shift in supply curve, and the result is equilibrium price, यानी कि new equilibrium price and quantity rises, okay. Then increase in demand is less than decrease in supply. So when this happens, then the supply rightward shift, the demand curve is less than the leftward shift in the supply curve, and the result is equilibrium, that is new equilibrium price rises and equilibrium quantity falls. Now, special cases, for example, there is a change in demand when supply is perfectly elastic. Perfectly elastic का क्या होता है, ये है, ठीक है। सप्लाई आपकी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि इट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। सो व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, चेंज इन डिमांड डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस बिकॉज द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज। तो आपको जब परफेक्टली इलास्टिक बोले तो इसका मतलब है एक सीधी सी लाइन बस खींच देनी है, राइट। परफेक्टली इलास्टिक आप हमेशा याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। परफेक्टली इलास्टिक, जैसे इलास्टिक, आप सिंपल से मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशल केस में जैसे ये बोल रहे हैं ना कि भूल जाते हैं बच्चे परफेक्टली इलास्टिक, ये परफेक्टली कैसे बोल उसको करते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक यानी कि परफेक्टली जब आप एक इलास्टिक की रबर बैंड खींचते हैं तो क्या होता है, खींचता चला जाता है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो बस उसको दिमाग में रखिएगा कि दैट इज इट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट,
यहाँ पे डिमांड इंक्रीज कर रहा है ना, तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है. सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने आपको पहले ही बता दिया. इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस. क्योंकि जब डिमांड कर्व आपकी कट कर रही है आगे से ना, ये आगे बढ़ रही है, राइटवर्ड जा रही है, इंक्रीज कर रही है, तो क्या होगा, अपने आप आपको क्वांटिटी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड वाला ये बता रहे हैं. डिक्रीज इन डिमांड का क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी, राइट. और लेकिन परफेक्टली इलास्टिक रहेगी, सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी. ओके, देन चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. ओके, अब यहाँ पे सप्लाई था परफेक्टली इलास्टिक, राइट. यहाँ पे क्या है, डिमांड है, तो डिमांड को भी हम वैसे ही रखेंगे. अब सप्लाई खाली चेंज कर रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई मतलब राइट वर्ड शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में ही इंक्रीज डिक्रीज करेंगे. इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस. ओके, और इसमें क्या था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, इसमें भी था इंक्रीज इन डिमांड में भी और इंक्रीज इन सप्लाई में भी, चाहे आपका परफेक्टली डिमांड इलास्टिक हो चाहे सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक. ओके, now decrease in supply, when supply decreases, supply curve shifts to the left and demand curve is horizontal straight line parallel to x-axis. Equilibrium price remains the same and equilibrium quantity falls. Okay, then change in demand when supply is perfectly inelastic. Inelastic का मतलब क्या है, ये एक vertical straight line हो जाता है parallel to y-axis. इतना याद रखिएगा, ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक मतलब रबर बैंड याद रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक उसका ऑपोजिट, राइट. सो इंक्रीज होगा डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा, आपका खाली प्राइस चेंज होगा, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. डिमांड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट, तो प्राइस जो है बढ़ रहा है, राइट. देन डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड डिक्रीज कर रही है और सप्लाई आपके क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो क्वांटिटी रिमेन्स द सेम एंड प्राइस विल फॉल. ओके, देन चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली, अब डिमांड को आपको परफेक्टली करना है, इसका मतलब है डिमांड जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा डिमांड में, सिर्फ चेंज किस में आएगा, सप्लाई में, उसकी वजह से प्राइस को अफेक्ट करेगा, राइट. इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, राइट. एंड हियर also again decrease in supply, it means the when there is a decrease in supply, it means it is a leftward shift, okay, in the supply curve. And what happens here, the price increases but quantity remains same because demand is perfectly inelastic. I hope your each and every topic is clear to you. You need to do the more practice, okay. And this was your last chapter of microeconomics, okay. Hope you understand it. You can watch the many more videos are already uploaded, okay, for macroeconomics also. And very soon I'm going to start statistics, after this only numericals and accounts of 9th and 10th of ICSC, right? So I hope you understand it, you like it. Please do like, share, and subscribe. And thank you for watching.